জোর করে নির্বাচন করে Ready रहिए। রোকা যাবে না তৃণমূলের জেতার ঢেউ। এটা सूर्य মানুষের की ঢেউ, रोशनी क्या এটা कोई रोक মানুষের सकता है? তুফান, এটা মানুষের তর্জন, এটা মানুষের গর্জন। तृणमूल का जो समुद्र है এটুকু বলে वो नहीं বলবো, रोका जा सकता। আমি বলবো ব্রিগেডের গর্জন, আপনারা বলবেন বিজেপির বিসর্জন। ব্রিগেডের গর্জন। मैं कहूंगी আমার থেকে আপনাদের গলা কি করে আসতে হলো? ब्रिगेड का ব্রিগেডের और आप গর্জন, कहेंगे बीजेपी का विसर्जन। ব্রিগেডের গর্জন, মতুয়ার গর্জন, রাজবংশীর গর্জন, আদিবাসীদের গর্জন, मथुआ का गर्जन, লোকশিল্পীর গর্জন, राजवंशी का गर्जन, সংখ্যালঘুদের গর্জন, आदिवासियों का गर्जन, মতুয়াদের গর্জন, জঙ্গলমহলের গর্জন, अल्पसंख्यकों का गर्जन, সারা বাংলার গর্জন, मथुआओं का गर्जन, উত্তরবঙ্গেও গর্জন, जंगल महल का गर्जन, দক্ষিণবঙ্গেও গর্জন, पूरे बंगाल का गर्जन, চারিদিকে গর্জন, उत्तर बंगाल का गर्जन, গর্জন গর্জন, दक्षिण बंगाल का गर्जन, গর্জন গর্জন, चारों ओर गर्जन ही गर्जन। গর্জন গর্জন, গর্জন গর্জন। আমি এবার আপনাদের জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ, मैं अब आप জয় लोगों বাংলা को বলে জয় জোহার, जय हिंद, वंदे मातरम, সত শ্রী तृणमूल अकाल जी, कांग्रेस जिंदाबाद, নমস্তে, जय সব बांग्ला বলে कहकर এবার আমি जय আমাদের जोहार, প্রার্থীর नाम घोषणा सलाम করতে वालेकुम, চলেছি। सत श्री अकाल, नमस्ते, सब बोलकर আমি অভিষেককে বলবো, অভিষেক आप उम्मीदवारों की नाम घोषणा करने जा रही हैं। তিনজনের চারজন যাও, চন্দ্রিমাকে নিয়ে নাও। তোমরা मैं প্রার্থীদের अभिषेक নিয়ে से এসো। कहूंगी আর অভিষেক তুমি নামগুলো অ্যানাউন্স করো, তাহলে আমি ওদের নিয়ে র্যাম্পে হেঁটে দেখিয়ে দেবো। আগামী লড়াই হবে। তৃণমূল কংগ্রেস মাইকে কান বাজাতো, খেলা হবে খেলা হবে, এখন আর বাজাচ্ছে? আরে খেলা হলো বিহারে, ভাইপো যাবে তিহারে, এবারে এই গান বাজবে। খেলা তো বিহারে হয়ে গেল। সরকার ছিল লালুর, লালু আউট, মোদি ইন। লালু চলে গেল, মোদি ঢুকে গেল, আর ভাইপোর এবার টাইম আসছে। আপনারা সবাই তৈরি হন। আজকে সন্দেশখালীর এত মা যাদের সাথে আমি আসার সময় দেখা করে এলাম, আজকে এই মা। चलिए, तो एक तरफ कोलकाता में ममता बनर्जी की रैली आप देख पा रहे हैं, सीधी तस्वीर, और दूसरी तरफ संदेशखाली में भारतीय जनता पार्टी का हल्ला बोल, काउंटर रैली, और बस अब से थोड़ी देर में ही बस लिस्ट भी अनाउंस करने वाली है ममता बनर्जी, और इसकी जिम्मेदारी अभिषेक बनर्जी पर। सुनिए। বিরুদ্ধে যারা লড়াই করবেন আমি একে একে নাম ঘোষণা করব। নামগুলো ঘোষণা করার পর পিছনে যে স্ক্রিন রয়েছে আপনারা সেই স্ক্রিনে প্রার্থীর ছবি সহ, প্রার্থীর নাম সহ, যে নির্দিষ্ট লোকসভা কেন্দ্র থেকে তিনি লড়ছেন তার বিস্তারিত ছবি দেখতে পাবেন। এবং বাংলার মূল যোদ্ধা যারা কুচবিহার থেকে শুরু করে কাকদ্বীপ, দার্জিলিং থেকে দেগঙ্গা, जो जिस जगह से लड़ रहे हैं उनकी যে तस्वीर आप 42 देख জন सकेंगे। প্রার্থী লড়াই করছে আমি একে একে कूच बिहार से लेकर সবার काकद्वीप, নাম दार्जिलिंग, ঘোষণা করব। देगंगा, আমি প্রথমেই 42 उम्मीदवारों শুরু করছি के नाम एक কুচবিহার। एक करके घोषणा करूंगा मैं। কুচবিহার থেকে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী 2024 সাধারণ নির্বাচনে कूच बिहार বাংলার হয়ে লড়াই করবেন জগদীশ চন্দ্র বাসুনিয়া। जगदीश बासुनिया को এরপর लड़ाई करेंगे कूच बिहार से। আলিপুরদুয়ার, আলিপুরদুয়ার থেকে লড়াই করবেন বাংলার প্রার্থী इसके बाद अलीपुरद्वार, জনপ্রিয় রাজ্যসভার সাংসদ এবং আলিপুরদুয়ার अलीपुरद्वार জেলা से लड़ाई তৃণমূল करेंगे কংগ্রেসের সভাপতি जनप्रिय প্রকাশ চিক বড়াইক। राज्यसभा के सांसद, জলপাইগুড়ি থেকে अलीपुरद्वार जिला को বাংলার হয়ে বাংলার বিরোধীদের প্রকাশ পক্ষে সিং বা বাংলার বড়াইক। বিরোধীদের বিরুদ্ধে লড়াই করবেন जलपाईगुड़ी, নির্মল চন্দ্র রায়, ধূপগুড়ির বিধায়ক। উপনির্বাচনে আপনাদের জলপাইগুড়ি से সকলের लड़ेंगे আশীর্বাদ নিয়ে জিতেছেন এবং ধূপগুড়িকে निर्मल चंद्र মহকুমায় राय, धूपगुड़ी के যাতে विधायक। রূপান্তরিত করা যায় তিনি
অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন সেই নির্মল চন্দ্র রায় জলপাইগুড়ি থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে চলেছে। এরপর धूपगुड़े के लिए अग्रणी भूमिका दार्जिलिंग- निभाई है उन्होंने। দার্জিলিং থেকে জোড়াফুলের इसके बाद- প্রার্থী इस तरह से समर्थन मिल रहा है। अनुपम, अनुपम सुन पा रहे हैं आप हमें? जी बिल्कुल, देखिए धीरे धीरे जो कैंडिडेट हैं उनके, जी बिल्कुल आशुतोष, जी जी बिल्कुल, अपनी बात रखिए, पूरी करिए। हेलो, हाँ, थोड़ा डिले है अनुपम, बिल्कुल अपनी बात रखिए। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अब बिल्कुल अभी जो उम्मीदवार हैं उनके नामों की तालिका की घोषणा की जा रही है, उनके नामों की घोषणा हो रही है। वहीं बीजेपी की ओर से संदेशखाली में आज रैली की जा रही है। तो सुपर संडे है एक तरह से, और बीजेपी की तरह टीएमसी भी अब पूरे जोशो खरोश के साथ जो चुनावी कैंपेन है, प्रक्रिया है, उसमें उतर चुकी है। आज जो ब्रिगेड परेड रैली, मेरे पीछे जो मैदान है वहां से जो सभा की शुरुआत हुई है, ये अब लगातार चलेगी। और तृणमूल कांग्रेस ने आज साफ कर दिया है, खासतौर पर ममता बनर्जी ने, कि किस तरह से आगे बढ़ना है। और जो मुद्दे हैं, मुख्य मुद्दे जो उठाए गए हैं, बंगाल की संस्कृति पर हमला कर रही है बीजेपी। बंगाल की संस्कृति से उनकी संस्कृति मेल नहीं खाती है, खासतौर पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जो स्टैच्यू तोड़ा गया था। इसके अलावा जो बंगाल के ये जो 42 उम्मीदवारों की सूची है, क्या 42 जगहों से अपने सांसदों को, प्रत्याशियों का नाम जो है वो सामने रख दिया है, या कुछ सीटें छोड़ी गई हैं गठबंधन के लिए या कांग्रेस के लिए? जी देखिए, 42 नामों की घोषणा आज होने वाली है। और 42 सीटों पर अभी तक जो नाम सामने आ रहे हैं उनमें से सभी तृणमूल कांग्रेस की ओर से हैं। तो एक तरह से ये बात साफ हो रही है कि अभी तक जो इंडिया अलायंस की बात हो रही थी वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं आ रही है, क्योंकि पहले ही ममता बनर्जी ने कह दिया था कि इंडिया अलायंस की जब बात चल रही थी कि 42 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस अकेले लड़ेगी, तो यहाँ पर वही अभी तक जो लिस्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक तो तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार ही यहाँ पर सामने आ रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। यूसुफ पठान को वहां से खड़ा किया गया है अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ। ये बड़ी खबर है, मैं आपको बता रहा हूं। और ये बहरमपुर से लड़ेंगे। तो एक बात पूरी तरह से साफ हो गई है कि कांग्रेस के साथ पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का कोई भी गठबंधन नहीं हो रहा है। जो चलिए अनुपम, नजर बनाकर रखिएगा। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर दर्शकों को जानकारी पहुंचाने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के आजमगढ़ से कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। प्रधानमंत्री ने यूपी के साथ साथ देश के कई राज्यों की परियोजनाओं का भी शिलान्यास यूपी से किया वर्चुअली। प्रधानमंत्री मोदी ने आजमगढ़ रैली से विपक्ष पर तीखे प्रहार किए हैं। पीएम मोदी ने उनकी सरकार की ओर से तेज विकास के लिए उठाए गए कदमों का भी ब्यौरा दिया, जनता को यह सब कुछ बताया है। पीएम ने कहा है कि गन्ना किसान आज खुश हैं, उनका हजारों करोड़ का बकाया भी चुका दिया गया है। यूपी तेज रफ्तार के साथ गतिमान है, आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का पूर्वांचल दौरा कई लिहाज से बेहद अहम, बेहद खास। पूर्वांचल में यूपी का जो इलाका है वहां 5 सीटों पर बीजेपी पिछली बार हारी थी, और इस बार बीजेपी मिशन 400 पार के तहत पूर्वांचल में बेहतर करने की उम्मीद कर रही है। और इस दौरे से बीजेपी ने यूपी और बिहार तक के पूर्वांचल के इलाके को साधने की पूरी कोशिश की है। तो पूर्वांचल की धरती से प्रधानमंत्री मोदी की जो 10 बड़ी बातें हैं वो भी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से हम दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। चलिए हर बड़ी खबर पर नजर है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें, देखते रहें आज तक।